Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Today I will take your class. I am Navjot Kaur. Kavita ma'am will not take your class today, okay? I think she must have told you. Yes, ma'am. Okay, fine. So, can anybody tell me what you have done in the last tutorial? Ma'am, we have to start tutorial 7. We have just completed tutorial Okay, 6. fine. Okay, fine. Also, may I know who is taking your lecture classes of Mathematics 1? Ma'am, Kavita ma'am only. Okay, okay, Yes, ma'am, Miss Kavita. okay, fine. So, have you tried tutorial 7? No, ma'am. Okay. So, I think if Kavita ma'am is taking your class, a lecture class, then you must be familiar with local maxima, local minima, saddle points. You all are familiar with local maxima, minima, and saddle points. Dhruv, Riya, Gurmeher. Are you present? Yes, ma'am. I want everyone to participate. So let's start with local maxima, minima, and saddle points. So tell me how you will get to know that this is a point of local maxima or minima, or this is a saddle point. Tell me. So possible points of local maxima and minima are if you have attended the class, then you must be knowing these points. So tell me. Keeping del f by del x FX equal, 0. yes, and fy 0, right? Yes, ma'am. Or fx or fy or both don't exist. And the third thing is boundary points, Boundary points. right? Then you must have done the second derivative test. So what happens in second derivative test? You need to calculate this value. Ma'am, local maxima will be at fxx will be less than 0, then local maxima is Yes, I'm, greater than local minima. then you tell me. I'm just writing this thing. Then you tell me, okay? So we will get this value. This is square, okay? Square is included in it. So there are three possibilities. It can be equal to 0. This can be less than 0. This can be greater than 0, right? So when this value is coming out to be equal to 0, so our test fails. This test is inconclusive Okay. for this part. When this is greater than 0, what we get? Local maxima.
Then you check the value of fxx. If this thing is greater than 0, then you have another two things. मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम Yes. मैम वो ना कविता मैम ने बोला था कि आज वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर? कौन सा क्वेश्चन पेपर? वो मैम जो एग्जाम हुआ था सेशनल हुआ था ना एक्चुअली वो आपके साथ कविता मैम ही डिस्कस करेंगे, मुझे उन्होंने ट्यूटोरियल 7 के लिए ही कहा है। ओके मैम ठीक है ठीक है, तो ट्यूटोरियल हाँ जी 7 आज मैं करवाऊंगी आपको। So accordingly, if this value is coming out to be greater than 0, then you will see the value of fxx. If it is greater than 0 and if it is less than 0. So tell me, if it is greater than 0, what you will get? Minima. Local minima. Okay. And if it is greater than, less than 0, then you will get Local maxima. local maxima. And if this value is coming out to be less than 0, then what you get? Saddle point. So now we will do the questions. So check first question, first part. This one. So they are asking to find the local maxima, local minima, saddle points of the function. So this is the function which is given to us. So just calculate the values where it will be critical point. I'm just writing the statement here. fxy equal to, it is x square plus 3xy plus minus 6x plus 3y minus 6. So tell me how you will calculate local maxima, minima or saddle points. First of all, tell me how you will calculate the critical points. As discussed earlier, we will just calculate this value and we will put it equal to 0. Then we will calculate this value and we will put it equal to 0. So tell me, what is curl f by curl, del f by del x? Ma'am, 2x 2x plus 3y 3y yes plus 0 minus 6 minus 6 minus plus 6 0 0 equal to 0. Okay. And what is del f by del y? 3x 3x plus 6y Yes. plus 3 Yes. So we will just solve these two equations, this one, and we will get the value of x and y from here. I think you must be knowing how to solve these two equations. Simply multiply this equation by 2 and then just eliminate one variable from here. So if I'm multiplying this equation by 2, so what I'm getting? 4x plus 6y minus 12 equal to 0, right? Minus minus plus. So cancelling this out, I'm getting minus x plus 15 equal to 0. I'm getting the value of x equal to 15. Just putting it in this equation of what I'm getting. 30 plus 3y minus 6 equal to 0. So tell me the value of y. मैम इसका What will be the value of y? ये था -9 मैम Minus 8. सॉरी मैम नहीं So what is your critical point? It is 15 comma minus 8. So this is your critical point. Now you will apply the second derivative test. So as the name says, second derivative test, so you need to calculate the second derivatives fxx, fxy, fyy, right? So what is the value of fxx? This is your fx. So just differentiating this with respect to x again. So what you will get? 2 2. Yes. Differentiating this with respect to y, what you will get? 3 3. 3. And now it is fyy. So this is our fy. So differentiating it with respect to y. So what you will get? 6 6. So we will just find this value d fxx fyy minus fxy whole square. So what you will get? 2 into 6 minus 9, right? So this is 12 minus 9, which is equal to 3, which is greater than 0. So we are here in our graph. In this flowchart, we are here. It is greater than 0. Now we will check the value of fxx.
So what is fxx? Ma'am, It is, can you tell how fxy is 3? see, this is your fx, right? This is your fx. So just differentiating this fx with respect to, partially differentiating it with respect to y. So you will get Okay, only ma'am. 3. Okay. So this is also greater than 0. This is Ma'am. also greater than 0. So what you will get? Local maxima or minima according to this flow chart? Local minima. Local minima is the answer. Okay. Now you can do, you can try other parts in the similar way. All these parts you can try yourself. So now tell me for the second question, which part has been done in your class? Or should we do the third one? Second, third part, should we try this one or you want any other part to be tried over here? Now you can Ma'am, easily do fifth the part and मैम एक तो फिफ्थ पार्ट करवा दीजिए और एक थर्ड Can- पार्ट थर्ड, पहले ये बताओ थर्ड करना है? How many of you want कि थर्ड पार्ट ट्राई करें? और मैम should एक we do the ट्रायंगुलर कर fifth? लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर कर लेते हैं, 2 पार्ट्स. चलो ठीक है, तो फिफ्थ लाइक पार्ट फिफ्थ ट्राई कर कर लेते लेते हैं हैं. एंड थर्ड एंड सेकंड कर लेते हैं. चलो ठीक है, फिफ्थ पार्ट. देखो अब हमारे पास व्हाट वी सेड कि हमारे पास कैसे कैसे लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स आएंगे. एक तो इन दिस वे एक ऐसा होगा कि जहां पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, और एक है बाउंड्री पॉइंट्स. तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसमें बाउंड्री पॉइंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, राइट? तो अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें बाउंड्री पॉइंट्स होंगे क्योंकि हमें इन्होंने प्लेट्स वगैरह दे रखे हैं. जैसे ट्रायंगुलर प्लेट है तो ये बाउंड्री पॉइंट्स बन जाएंगे. इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें कुछ रेक्टेंगल है तो ये बाउंड्री पॉइंट्स बन जाएंगे, राइट? फिर रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कैसे वो रेक्टेंगुलर प्लेट बन रही है. सो वी आर गोइंग टू ट्राई द फिफ्थ पार्ट फर्स्ट, फिर हम देखते हैं अगर वी आर हैविंग टाइम तो हम कोई और ट्राई कर लेंगे. तो द क्वेश्चन इज सेकंड फिफ्थ. ओके, so I'm just writing this statement. Let me write this statement first. It is 4x fxy equal to 4x minus x square cos y. And the rectangular plate is 1 to 3 minus pi by 4 to pi by 4. Please recheck the statement. Let me check it again. 4x minus x square cos y 1 to 3 minus pi by 4 to pi by 4. So just plot it on the graph. How you will get it? Just writing it down. So they're saying y lies from minus pi by 4 to pi by 4, right? And x is lying between 1 to 3. Let us suppose this is 1 and this is 3. So tell me how the graph will look like. It will be like this. Is it correct? Why they said minus, it y lies between minus pi by 4 to pi by 4. मैम ये ग्राफ प्लॉटिंग फिर से बता सकते हैं? हाँ मैं फिर से बता रही हूँ. See, हमारे पास क्या है, x is lying between 1 to 3. तो सबसे पहले मैंने x के वो लिख लिए, कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 to 3 ये हुआ, ठीक है. और y is lying between minus pi by 4 to pi by 4. ठीक है, तो अब मैंने minus pi by 4 to pi by 4 यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ठीक है, मैंने Okay, पॉइंट्स ma'am. ढूंढ लिए. फिर अब देखो यहाँ से आप प्लॉट करोगे, हमारा जो वो वाली इंटरवल है कि y है जो minus pi by 4 to pi by 4 लाई कर रहा है, हाँ जी right? मैम.
और जो x है वो 1 to 3 लाई कर रहा है, तो यही रेक्टेंगुलर पाथ बनेगा ना ये वाला। ठीक है ठीक है। ठीक है, अगर मान लो 0 to 3 होता तो यहाँ से स्टार्ट हो जाना था इसमें, तो ये भी इंक्लूड होता है एरिया ये वाला, ठीक है अगर x 0 to 3 होता। ठीक है, तो मैंने जो फंक्शन दिया उसका क्या फायदा था? हम वो करेंगे अभी। ठीक है, मैं बता रही हूँ अब कैसे करोगे आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो अभी हमने क्या किए थे कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा के क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे और बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे। अभी वी हैव डन कि हम पहली वाली चीज क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स इसको कैसे हम निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे एंड हाँ। जीरो पुट कर एंड दिस थिंग इक्वल टू 0, राइट। तो अब इसको करो तो क्या बनेगा आपके पास, बताओ। अगर डेल एफ बाय डेल एक्स करोगे तो क्या आएगा, मैम इसका आंसर ना 4 cos मैन। ये चीज आएगी। यस मैम। और इसको करोगे तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे 4x माइनस एक्स स्क्र एज इट इज, cos y का क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन में। माइनस ऑफ साइन y। तो अब यहाँ से बताओ क्या कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। इसको पहले इक्वल टू 0 पुट करोगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, राइट। इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे एंड इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, राइट। तो इसको पुट करो तो क्या आएगा, व्हाट इज द x वैल्यू ऑफ इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2। इसको पुट करोगे तो क्या आएगा, ये y मैम इक्वल टू मैम ये जैसे ना पाई बाय 2 आएगा मैम। पाई बाय 2। इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम x, 4 माइनस x, x राइट। तो x 1 इक्वल टू x 0 एंड x 0। इक्वल टू 4। और इसको पुट करोगे y की 0 वैल्यू, y इज कमिंग आउट टू बी 0। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन कौन से पॉसिबल पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो यहाँ से पॉइंट आएगा वो हमारे रीजन के बीच में होना चाहिए, इट शुड नॉट बी आउटसाइड ऑफ द रीजन। ओके, ओनली x इक्वल टू 2 पॉसिबल है ना? x इक्वल टू 2 पॉसिबल है क्या, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पॉसिबल है, वो नहीं सॉरी y मैम। इक्वल टू पाई बाय 2, वो तो नो। बाहर ही चला जाएगा, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू 0 पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल नहीं, वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल। x इज इक्वल टू 4, वो भी बाहर चला गया, राइट, यहाँ पर आ गया कुछ, तो ये भी नहीं पॉसिबल। y इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। y इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, है मैम सॉरी मैम। y तो है ना, हाँ जी मैम। तो ये वाली चीज तो पॉसिबल है। तो अब हमारे पास पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट विल बी 2, 0। मैम बट y यस, मैम बट y इक्वल टू 0 भी तो लाइक फिगर के अंदर नहीं आ रहा ना, रेक्टेंगल के अंदर। पर वो रेंज के अंदर तो है। नहीं देखो y इक्वल टू 0 वाली लाइन ये होगी ना, ये वाली चीज यही हुई, y इक्वल टू ओके 0। मैम, ओके ओके, तो इसमें ये वाले पॉइंट्स भी आ सकते हैं ना, तो 2, 0 अब करोगे तो वो वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, राइट। तो हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट आ ओके गया। मैम। अब हम ये वाले क्वेश्चंस में व्हाट वी हैव टू डू कि हमने पॉइंट्स वी हैव टू मैम जस्ट एक फाइंड। डाउट था। हाँ मैम जी, ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 2,0 उस पे वो ग्राफ को वहाँ पे एक मतलब ऊपर से ऊपर वाला कॉर्नर वहाँ पे उसका टच नहीं होना चाहिए नीचे। कहाँ पर आप कह रहे हो, मैम ये जैसे ये जैसे वो वाला ना जैसे 1,π/4 वाला पॉइंट है। 1, ये रहा मैम 1, ये रहा। 1,π/4 वाला मैम इसको 2,0 के साथ इसको हमें ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा? ज्वाइन का तो इसमें कोई वो नहीं है, मैम ज्वाइन जैसे करना ही क्रिटिकल क्या। पॉइंट आ रहा है तो फिर वहाँ पे नहीं उसकी एक्चुअली वैल्यू नहीं। हमारे पास हमने क्या करना, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, एक रीजन दे रखा है, वी जस्ट हैव टू फाइंड दी पॉइंट्स, हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं कहाँ कहाँ पर हमारे मैक्सिमा या मिनिमा बन सकता है। तो उनमें से हम सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेंगे, देन हम उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो हम उन सारे पॉइंट्स में से देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन से वो पॉइंट पर है और मिनिमम कहाँ पर है, तो वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में काउंट होगा। तो हम यहाँ से बस बेसिकली हमने पॉसिबल पॉइंट्स ऊपर क्या किए थे, लोकल मैक्सिमम मिनिमा के,
कि हमने ये चीज की थी कि यहाँ तो वहां पर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाए, एफ एक्स एफ वाई दोनों इक्वल टू 0, या वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, या बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो अब देखो एफ एक्स और एफ वाई तो एग्जिस्ट सभी जगह पर कर रहे हैं, राइट? बस इक्वल टू 0 कर हम पॉइंट निकाल सकते, तो वो हमने निकाल लिया, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का एक पॉइंट। ठीक है, ठीक है तो मैम, यहाँ पर yes, बस अब हम एक फंक्शन की वैल्यू साथ के साथ ही निकाल लिया करो, अदरवाइज आप लास्ट में भी निकाल सकते हो, इट इज अप टू यू। तो हम यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इसकी फंक्शन में पुट करना है जस्ट 2,0, तो व्हाट वी विल गेट 4 into 2 8 minus 4 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो हमारे पास ये एक चीज बन गई। अब हमारे पास बाउंड्री की बात चलती है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया फिर तो बस आगे सारे क्वेश्चन सेम ही है। तो अब बाउंड्री पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, हम जस्ट उसको मार्क कर लेंगे इसकी बाउंड्री। तो इट इज लेट अस नेम इट ए बी सी डी, राइट? अब हम सबसे पहले ए बी बाउंड्री की बात करते हैं। ए बी बाउंड्री पर हमारा बताओ इक्वेशन की लाइन, इक्वेशन के लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सॉरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी ए बी पर? हम इसकी ना y इक्वल टू -5/4। हाँ, y इक्वल टू -5/4, ठीक है। इस केस में क्या होगी बी सी पर, कहाँ पे मैम? ये वाली लाइन पर बी सी। x इक्वल टू 3, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और सी डी लाइन पर क्या होगा y इक्वल टू π/4, y इक्वल टू π/4, और x डी इक्वल ए टू 1। लाइन पर x इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये सभी को क्लियर है ये वाली चीज? तो नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री पॉइंट्स। Yes, तो ma'am. बाउंड्री पर हम चलेंगे, तो बाउंड्री पर क्या होगा, हम अलोंग ए बी चेक करेंगे, अलोंग बी सी चेक करेंगे। अगर ट्रायंगुलर होता तो 3 बाउंड्रीज आती, राइट? अलोंग सी डी चेक करेंगे एंड अलोंग AD ए डी। ठीक है, तो अब अलोंग ए बी कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन हमें पता है कि हमने वी हैव फाउंड कि y इक्वल टू -π/4 वहां पर हमारी इक्वेशन होगी, तो इट विल बी -π/4। BC पर कौन सी होगी, मैम ये x x इक्वल इक्वल टू टू 3, 3, और CD पर क्या होगी y y इक्वल टू इक्वल प्लस टू, π/4, और x AB इक्वल टू पर 1। x इक्वल टू 1, राइट? तो हमने यहाँ से वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या, हमारे पास फंक्शन था x, y। अब जब हम ये वाली चीज पुट कर देंगे तो हमारा वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी वो वाली चीज। तो अब क्या करें, x -π/4, तो उसमें पुट करो, हमारा एफ एक्स वाई क्या था 4x 4x माइनस - एक्स x² स्क्वायर कॉस cos 1 कॉस cos of -π/4, -π/4 तो माइनस यहाँ पर आ गया, कॉस minus π/4 क्या हो गया √2, -1 by root 2। 1/√2, राइट? तो इस केस में क्या होगा 3, y, so it will be 3 4 cos y, into 3 12, 12 minus 9 9 3 cos y, 3 cos y। इसमें क्या हो जाएगा 4x - x² by √2। 4x minus x square by √2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इसमें मैम 3 cos में सॉरी वापस 1, 3 y आएगा ना, it will be 1, y, so what we will get 3 cos y। 3 cos y। is it clear to everyone? तो अब बस देखो इसमें क्या है, हमने देखना है, ये एक वेरिएबल का फंक्शन बन गया। अब इसको लेट अस सपोज इसको हम नाम दे रहे हैं g1, x वेरिएबल का फंक्शन है ये भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, इसको लेट अस सपोज h1y नाम दे रही हूँ मैं। इसको नाम मैंने, ये भी वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, इसको लेट अस सपोज g2x नाम दे दिया मैंने, कि g2 जो फंक्शन है वो x वेरिएबल में, x वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, इसको h2y नाम दे दिया। इज इट क्लियर? अब बस हमने, अब जैसे हमारे 2 वेरिएबल्स में हम क्या कर रहे थे कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स को एफ एक्स एफ वाई को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं या डज नॉट एग्जिस्ट देख रहे हैं, इसमें तो सिंगल वेरिएबल हो गया। तो अब इंटीरियर पॉइंट्स कैसे आप क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढोगे? आप सिंपली ऐसे करोगे ना, इसका सिंगल डेरिवेटिव भी होगा, अब तो कोई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई नहीं होगा, सिंपल डेरिवेटिव होगा क्योंकि वन वेरिएबल का फंक्शन बन गया। तो इसका अब आप ये वाली चीज का डेरिवेटिव लो, तो बताओ क्या 4 है? - 2x by 4 minus 2x। 4 plus 2x अपॉन हाँ रूट जी, 2 इक्वल टू 0, राइट? तो अब यहाँ से x की इक्वल टू वैल्यू 2 पता करो क्या होगी, 2 जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 मैम 2,
तो अब हमारे पास इंटीरियर पॉइंट आ गया, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आप कह रहे हो, तो वो क्या आएगा 2 कॉमा वाई की वैल्यू हमारी इस पूरे पर -5/4 -5/4 चल रही है, तो हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया, तो इस पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालो, ठीक है। और फिर हमने इसी अलोंग ए बी कर रहे हैं, तो हमने बाउंड्री देखनी है, बाउंड्री कौन कौन सी होगी, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट आपका क्या था, ए पॉइंट देखो क्या है, ए पॉइंट इज 1 कॉमा 1, -5/4, 5/4 बी पॉइंट क्या है आपका 3, -5/4 3 कॉमा -5/4, राइट। तो आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, 1 कॉमा -5/4, यहाँ पर फंक्शन 3, की वैल्यू -5/4 निकालो, ठीक है, ये आप खुद से फाइंड कर लेना। बी पर बी कौन सा था 3 कॉमा -5/4, राइट, तो यहाँ पर Yes, एक फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो अब आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट हुआ आपका 2,0, यहाँ से आपने ये वाले पाथ से निकाला 2 -5/4, 1 -5/4, 3 -5/4, 4 पॉइंट्स हो गए अब आपके पास। अब नेक्स्ट ये वाली चीज करते हैं, आप क्या करेंगे, फिर वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, तो आप सिंपली वो इंटीरियर पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3, sin y with a negative sign. माइनस साइन। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आएगी, 0. Y equal to 0. हाँ y इक्वल टू 0, और x हमें ऑलरेडी इस पर इक्वेशन क्या चल रही है, x इज इक्वल टू 3, तो पॉइंट कौन सा आ गया आपका 0, 3,0. सॉरी 3,0, 3,0. ठीक है, ये पॉइंट आ गया, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकालो अब 3,0 पर, ठीक है, ये निकाल लेना आप खुद से। फिर हमारी बाउंड्री कौन कौन सी आएगी यहाँ पर, बी एंड सी पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट्स, तो बी पॉइंट ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर ही रखा है, ठीक है, तो सी पॉइंट अब क्या बन रहा था, सेम द ग्राफ, बस ये थोड़ा लेंथी है, अदरवाइज इतना मुश्किल नहीं है। सी पॉइंट क्या 3, है आपका pi/4. 3,π/4। 3,π/4, डी पॉइंट क्या है आपका 1, 1, pi/4. π/4। मैम अगर ये टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो कितना मार्क्स का होगा? डिपेंड करता है अब आपके क्वेश्चन, आपके टेस्ट भी किस अकॉर्डिंग हो रहे हैं, क्योंकि ये लेंथी है थोड़ा, 5 मार्क्स का तो पक्का होना चाहिए वैसे, ठीक है। तो सी पॉइंट क्या बन रहा था 1, π/4, राइट, तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेना बस मैम आप, 3, pi/4 था. सॉरी 3, π/4, तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेना आप, ये तो कर लोगे अब, डी पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास था, तो अब हमारा नया पॉइंट 3 हुआ है, सी हुआ है, ठीक है। तो अब सिमिलरली ये वाली चीज करोगे, कर लोगे ये वाली चीज, अब कंप्लीट करना तो कर लो अभी। तो ये क्या हो गया, ये g2x का डेरिवेटिव लो, तो वो क्या आएगा 4 -2x/√2. 4 -2x/√2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 2 ही आ रही है, Yes, ma'am. ठीक है, तो 2 आई आपकी, और पॉइंट क्या बना 2 कॉमा ये Plus इक्वेशन pi/4. 5/4, ठीक है। तो इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो ये वाले पॉइंट पर, और फिर बाउंड्री कौन कौन सी थी आपकी इसमें, मैम x 2/√2 नहीं आ रहा। x नहीं, ये 0 बन जाएगा, तो आपका 4 -2x इक्वल टू 0 होगा, तो 2x विल बी इक्वल टू 4, तो कैंसिल आउट करोगे तो 2 आ जाएगा, शुड आई डू इट, ये चीज आ जाएगी ना 4 -2x इक्वल टू 0, ये चीज में तो 0 बन जाना है यहाँ पर, तो 4 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2, इज इट क्लियर। फिर इसके बाद आपका इंटीरियर पॉइंट्स आ Yes, गए, ma'am. बाउंड्री पॉइंट्स के लिए आपको सी और डी चाहिए, सी ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड, डी की वैल्यू क्या है अब 1, pi/4. 1, π/4, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, ये पॉइंट पर। तो इस केस में आगे करोगे तो आपके मोस्टली पॉइंट्स हो ही गए हैं, आगे ये वाली ये एक ही चीज, काम को 4 बार करना है. हाँ सारी बाउंड्रीज पर चेक करना है, ठीक है। तो आगे अब आपका क्या होगा, ये वाली चीज का डेरिवेटिव लोगे, इक्वल टू 0 पुट करोगे,
-3 sin y -3 sin y तो आपका पॉइंट कौन सा आ जाएगा? y equal to 0 y इक्वल टू 0 और 1, पॉइंट क्या? 0 1,0 यहाँ पर फंक्शन की ये वैल्यू वैल्यू निकाल निकाल लो, जाएगी। ठीक है। और बाउंड्री क्या थी आपकी? a एंड d, राइट? a और d हाँ दोनों जी। आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही रखे हैं, Yes, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। तो फाइनली अब आप सारे पॉइंट्स लिख लोगे। तो पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे थे? सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट क्या था आपका? 2,0, 2,0 so then it was 2, minus pi by 4, then it was 1, minus pi by 4, then it was 3, minus pi by 4, वही 2, -5/4 कहाँ से आया? ये वाला हमने उसका डेरिवेटिव लिया ना, इंटीरियर पॉइंट्स हर का अच्छा, डेरिवेटिव ठीक अकॉर्डिंग, है मैम, ठीक है। ठीक है, ठीक है। फिर 3, 0 सब पर फंक्शन की वैल्यू निकाल कर लिख लेना यहाँ पर कि फंक्शन क्या है, ठीक है। 3, 0, 3, π/4 pi by 4, 3, pi by 4, देन अब आपका 2, pi by 4, राइट? 2, pi by 4, then 1, pi by 4, देन आपका कौन सी चीज आ रही है? AD तो हो गया 1, 0, ये वाला point। सब पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो और जो हाईएस्ट होगा तो ये पॉइंट्स बने आपके मैम पास। एक चीज पूछी थी मैम, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा हमेशा? नहीं, कैसे मतलब? A B B C C D A कोई? नहीं मैं वो नहीं बोल रहा मैम, एक बार आप ग्राफ पे लेके जाना। हाँ जी, हाँ। मैम ये जैसे ग्राफ प्लॉट किया हमने, तो ये हमने x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 3 तक वो प्लॉट किया था। तो वो पहला पॉइंट जो अपना आया मैम, वो यहाँ पे था 1,0, उसके बाद में 1, माइनस π/4, फिर वो 2, माइनस π/4, फिर वो 3, माइनस π/4, वो साइक्लिक ऑर्डर में ही चल रहा है ना ये सारा? नहीं, ये ऐसा कोई वो नहीं है। जो आप फाइनली पॉइंट्स कह रहे हो, ये वाली चीज कह रहे हो कि मैं जैसे लिख रही हूँ, राइट? हाँ कि जी, हाँ वो जी, हाँ जी मैम। नहीं, इसका कोई बस यहाँ पर फाइनली आपने पॉइंट्स जो भी आपके आ रहे हैं सारा क्वेश्चन सॉल्व कर वो हाँ मतलब वो फाइनल। जरूरी नहीं कि ऐसे ही आएंगे हमेशा। नहीं नहीं, वो कोई जरूरी नहीं, बस पॉइंट्स तक उनको मतलब है कि पॉइंट्स आपने सारे लिखे हैं कि नहीं, ठीक है। पॉइंट्स आपने सारे कंसीडर कर लिए कि नहीं, वो मेन चीज है। तो इन पर ठीक है। फंक्शन की वैल्यू निकालना, जैसे इस पर 4 थी आई थिंक, फिर सब पर निकालना जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा जिस पॉइंट पर होगी, जो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे कम होगी वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। अब ये वैल्यूज आप निकाल लेना, मैं आपको बता देती हूँ फिर भी अगर मेरे पास सॉल्व हुई। इस पर आपकी वैल्यू आ रही है 2, 0 पर इट इज कमिंग आउट टू बी 4, 2, माइनस पाई बाय 4 पर आपकी 4√2 आ रही है, 1, पाई बाय 4 पर आपकी 3√2 आ रही है, 3, माइनस पाई बाय 4 पर मैम भी। ये ना नेगेटिव का नहीं आएगा? देखो ऊपर नेगेटिव उसके साथ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा? मतलब फॉर x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई था, तो कॉस ऑफ माइनस π/4 -1/√2। देख लेते हैं, एक सेकंड, एक बार मैं यहाँ लिख लूँ फिर मैं बता रही हूँ आपको। और 1, पाई बाय 4 दोनों पर सेम ही वैल्यू आ रही है, प्लस और माइनस पर। 3, 2, पाई बाय 4 पर ये वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, 2, पाई बाय 4 पर क्या आ रही है। मैम वो भी 4/√2 होगी। 4/√2? हाँ जी मैम। 4/√2। मैम बट मेरा डाउट वो ना नेगेटिव को लेके हाँ, है। वो आपका 1, माइनस पाई बाय 4 यहाँ पर है ना। हाँ जी मैम, 1, माइनस π/4, फिर वो 2, माइनस π/4। 1, माइनस पाई बाय 4 1 पुट करोगे इसके बीच में तो क्या आएगा आपका? 4 मैम इसमें माइनस, पुट करना है या वो मेन फंक्शन में पुट करेंगे? हाँ ये भी मेन फंक्शन ही बन गया ना एक तरीके से, माइनस पाई बाय 4 हमने पुट कर ही दिया है। हाँ जी, हाँ जी, मेन ठीक में है। कर लो चाहे, मेन आपका ये था। सो हमारा पॉइंट ये वाले की बात कर रहे हैं हम, राइट? ये था Yes, मेन ma'am. फंक्शन। तो इट वाज 4 - 1 3
हाँ माइनस आएगा। और मैम अगर वहां पे अब वो 1 की जगह अगर आप 2 लोगे तब भी वो 4 माइनस 2 आएगा। 8 ये फिर देख लेना, ठीक है, यहाँ पर माइनस कह रहे हो आप और कि यहाँ पर था ना, ये भी मैम मैं चेक ये कर ना लो। 2 माइनस पाई बाय 4 वाला बोल रहा हूँ, उस पे भी माइनस आएगा ना, 3 माइनस पाई बाय 4 पे भी माइनस आएगा। सब पर ही माइनस है, ये चेक कर लेना क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अब एक बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हाँ cos पाई बाय 4 के कारण आएगा माइनस बाहर। हाँ जी 2 है तो आपका ये वाला फंक्शन था ना 4x 4x माइनस, माइनस x स्क्वायर इंटू कॉस बाय। हाँ cos पाई, तो चेक कर लो। अगर पाई बाय 4 कर रहे हो तो माइनस तो एक उसका ही आएगा, फिर 2 कर रहे हो 8 माइनस 4 हाँ आएगा। इस केस तो में इसमें तो हमने चेक कर लिया मैम। इसमें आएगा, हाँ ठीक है, इसमें चेक कर लिया हमने। और इस केस में 3 पाई बाय 4 पर इसमें प्लस रहेगा ना, इसमें प्लस रहेगा, हाँ प्लस ही उसमें भी है। प्लस रहेगा 2 पाई बाय 4 पे भी। इसमें एक पॉजिटिव 12 माइनस है, हाँ प्लस, इसमें आपका पॉजिटिव रहेगा इसमें भी। हाँ जी मैम 8 यस माइनस मैम। 4 होगा ना और यहाँ 1 पे भी। 0 पर और मैम ये 3 माइनस पाई बाय 4 पे नेगेटिव होगा। 3 माइनस पाई बाय 4 यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी मैम और यहाँ पर 1 0 पर 1 0 पे इस पे आ जाएगा मैम, इस पे तो 0 ही रहेगा, कॉस नहीं नहीं सॉरी मैम, 4 इसका आंसर माइनस 3 3, मैम 3 हाँ 3। तो बस इसमें से हाईएस्ट वाला देखो, ये बन रहा है 2 0, हाँ जी मैम। पर इनकी वैल्यूज चेक कर लो, ये तो कम ही हो मैम गया। वो 4 डिवाइडेड बाय हाँ 1.414 होगा, तो वो तो वैसे नेगेटिव में कम हाँ, आएगा। और सबसे नेगेटिव वाली वैल्यू देखो, एक सबसे मिनट। नेगेटिव वाली है। हाँ मैक्सिमम आपका 2 0 पर ही आ रहा है, मिनिमम आपके 4 पॉइंट्स पर आ रहा है, ये चेक कर लेना, सब पर ही आ रहा है। सेम वैल्यू तो नहीं आ रही वैसे हमारी। 4 वैल्यूज पे यस। या तो 3 ये वाला होगा मुझे लगता है मिनिमम, क्योंकि ये 4 जगह पर आ रहा है आपका। ये चेक करो 3/√2। मैम बट एक बार प्लस है एक बार माइनस है। हाँ ये चीज तो आपकी सही है बिल्कुल। चलो ये देखते हैं फिर, ठीक है, हमारा प्लस माइनस का ये कोई वो हो रहा है ना, लेट मी चेक। हमारा कौन, उन्होंने वैल्यूज कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं एक बार चेक करना। जैसे 3 माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, कॉस कॉस ऑब्जर्व नहीं कर लेता उसको, साइन को। ओह हाँ जी हाँ यस मैम यस मैम। है ना, कॉस नहीं है, हाँ जी मैम वो कॉस में नेगेटिव वाले नहीं आती। हाँ नेगेटिव वाली चीज नहीं आती तो हाँ कॉस, नहीं आती नहीं आती, सही हाँ बात हाँ, है yes, तो मैम। तभी मुझे लगता है ये प्लस ही आएगा, सारे प्लस हो जाएंगे सारे मैम। प्लस हो जाएंगे, राइट, तभी हमारी गलती हो रही है। ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सारे ही प्लस के होंगे। हाँ जी हाँ ठीक है, वो ही गलती हो रही है हमारी फिर। तो अब हमारा यहाँ पर वो होगा, ये वाली चीज, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये एब्सोल्यूट मिनिमा के होंगे। 1 माइनस 5/4, मैम एक ठीक तो है। ये जो ना कॉस का नेगेटिव थीटा वो क्या बोलते हैं वो थे कॉस थीटा, और एक वो ना सेकंड का भी नेगेटिव थीटा सेक थीटा होता है ना। हाँ शायद उसका भी वो अंदर ही खत्म हो जाता है, राइट, हाँ कॉस और सीकेंड का आई थिंक। फिर भी सीकेंड का एक बार ही वेरीफाई कर लेना आप लोग, कॉस का ठीक तो है मुझे पक्का पता है कि वो उसमें हो जाता है। कॉस में तो मैं भी श्योर हूँ। हाँ ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन, अब सेकंड, अब आपको आइडिया हो गया कैसे ट्राई करना है, तो सेकंड आई थिंक अब सारे कर लोगे आप लोग, क्योंकि ये थोड़े लेंथी जाएंगे, ठीक है, ये सारे पार्ट ट्राई कर लेना, मैम इजी है। कैन यू स्क्रॉल सम डाउन? यस मैम स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा। सो अब आप, मैम जहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं, लाइक येलो शेड जो किया आपने। मैम इसके बाद एक बार आप बिल्कुल ऊपर ले जाएंगी जहाँ पे आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बनाया था। हाँ एक सेकंड बस ये वो देख लें एक बार। यस मैम हो गया, थैंक यू। और आप कह रहे फ्लो चार्ट वाली चीज। हाँ जी मैम फ्लो चार्ट देखना है। एक सेकंड मैम बस। हाँ जी नो प्रॉब्लम।
तो इसके बाद आप ट्राई करना, ठीक है। और क्वेश्चन एक और देख लेते हैं अगर हम, अभी टाइम है 5-10 तक है ना आपकी क्लास, तो उसके बाद आपकी ट्यूटोरियल ये कंप्लीट है। फिर हम थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिर और पार्ट्स सेम ही चल रहे हैं। हो गया मैम, ठीक है। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन जल्दी से देखो, सेम ही प्रोसीजर है वैसे, बस अब इसमें सर्कुलर पाथ आ गया कुछ इस फॉर्म का। देखो अभी तक आपने पहले क्वेश्चंस किए जहां पर बाउंड्री है ही नहीं थी, फिर आपने क्वेश्चंस किए जहां पर कोई बाउंड्री है। अब क्वेश्चन है कि अब बाउंड्री कुछ इस फॉर्म की है कि आपकी वैसे नहीं बन रही, कि हाँ लाइंस नहीं बन रही। तो अब क्वेश्चन पढ़ो, अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट हैज द शेप ऑफ द रीजन दिस, द प्लेट इंक्लूडिंग द बाउंड्री where this is heated so that the temperature is given to be this. Find the temperature at the hottest and coldest points on the plate. तो वो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा चेक करोगे आप, आपको वो फंक्शन दे रखा है टेम्परेचर की फॉर्म में, राइट, और आपको वो रीजन दे रखा है और बाउंड्री का रीजन ये दे रखा है। तो बताओ कैसे करोगे? आई एम जस्ट राइटिंग दिस स्टेटमेंट, फिर आप मुझे बताना कैसे करना है। सेम ही प्रोसीजर होगा फॉलो। ये क्वेश्चन है आपका थर्ड। सो हम पहले x plus y square equal to 1 का सर्कल बन जाएगा। ठीक है, पहले तो ये दे रखा था, फिर उन्होंने बाउंड्री के लिए ये चीज दे दी, क्योंकि बाउंड्री वही पर होगी ना जब इक्वल टू 1 होगा। और आपको फंक्शन की फॉर्म ये दे रखी है कि टेम्परेचर है, मैक्सिमम और मिनिमा ही निकालना है, यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दिस। तो अब अगर हम प्लॉटिंग करें तो वी आर हैविंग समथिंग ऑफ दिस फॉर्म, राइट, रेडियस वाला जाएगा। ये वाली चीज हमारी बाउंड्री होगी, ठीक है। तो ये वाला रीजन, तो अब सबसे पहले तो वही चीज करोगे कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉसिबल पॉइंट्स क्या हैं, ये वाली चीज करोगे। यस सर, तो x equal to 0 ty equal to 0। हाँ, तो क्या आ रहा है इसके साथ, टेल इसका मी। आंसर मैम आएगा 2x minus 1 equal to 0 और इसका 4y equal to 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1/2, राइट। तो आपका पॉइंट कौन सा बन गया, 1/2, 0। 1/2, 0। तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका। इस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद था कि tx और ty और बोथ आर नॉट डिफाइंड, तो मैम इस tx पे फंक्शन की वैल्यू ना -1/4 आ रही है। अच्छा ठीक है, इसको t लिख लो, ठीक है। तो अब उसके बाद था कि tx और ty और बोथ डोंट एग्जिस्ट, तो वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो थर्ड था बाउंड्री पॉइंट्स। तो बाउंड्री के लिए अब आप क्या करोगे, अलोंग द बाउंड्री क्या होगा, हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, राइट। जैसे हमने पहले किया था बाउंड्रीज की इक्वेशन, तो इस बाउंड्री की क्या इक्वेशन होगी, हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, y की फॉर्म में निकाल लो, क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस। क्योंकि हमारे पास ये था सर्कल, हमने बाउंड्री निकालनी है, ये बाउंड्री थी, तो y यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो अब हम ये चीज लिख सकते हैं x, ये वाली चीज। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, txy का x, √1 - x² नहीं है। सॉरी यस, इट विल बी 1 - x²। तो अब हमारे पास t वैसे फंक्शन क्या था, इट वाज दिस। तो इसमें पुट करो y को, वो वाली चीज। सो इट विल बी x² प्लस 2 - 2x² 1 - x² माइनस x, ठीक है। तो आपके पास आ गए x² प्लस 2 - 2x² -x। तो आपके पास क्या आ गया, -x² -x में +2। ठीक है। ये वाली चीज आ गई, ये क्या था, +2। अब ये चीज आ गई, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है, इसको बस इसका डेरिवेटिव ले लो, फिर सिंपल, इसको चाहे gx नाम दे दो। तो इसका डेरिवेटिव लोगे, इक्वल टू 0 पुट करो इसको, ये वो तो टाइप -2 = 0 होगा। नहीं, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 पुट करो तो क्या आएगा आपके पास, मैम ये -2x - 1 = 0 -2x - -1। Is it clear to everyone?
तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? Yes, ma'am. -1, -1. -1/2 ठीक है। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या हो गया? टेल मी द पॉइंट। इट विल बी -1/2। -1/2 y की वैल्यू क्या थी? ये थी हमारे पास। इसमें पुट 1 करो -1/4 1 -1/4 √3/2 √3/2। तो इस पर भी t की वैल्यू निकाल लो, ये वाले पॉइंट पर, राइट? ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा? ये वाली चीज होगी, तो पॉइंट पर वैल्यू निकाल लो, बस यही होगा, क्योंकि बाउंड्री पर तो यही पॉइंट निकल रहा, और तो कोई पॉइंट बन ही नहीं रहा। ये आपका और ये वाला पॉइंट जब आप निकाल रहे हो तो आपने चेक करना वो रीजन के अंदर आ भी रहा है कि नहीं। ये आपका 1 होगा, यहाँ पर भी, यहाँ -1 होगा, वहां पे -1 वहां पे +1 1 yes और -1। -1 तो इसके बीच में वो वाला पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं, 1/2, yes 0? ma'am अगर नहीं लाई कर रहा तो हम नहीं कंसीडर करेंगे, वो कुछ यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लो, बस जहाँ पर ज्यादा होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, अदरवाइज दूसरा एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है। तो मैं वैल्यू बता देती हूँ, अगर मेरे पास हुई तो इसकी 11/4 आ रही है, और उसकी वैल्यू आ रही है, बताओ उसकी वैल्यू क्या आएगी? -1/4 आ रही है। और बाउंड्री के लिए ये वाले पॉइंट्स भी तो कंसीडर करेंगे हम, ये वाले। मैम ये जो ठीक है ठीक है। तो हाँ ये जी वाले पॉइंट्स बताओ क्या होगा? मैम ये ना 1,0 एक्चुअली के ये ऊपर वाले पॉइंट्स कंसीडर करेंगे जब हमने ये वाली चीज रख दी, तो हमारा x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? हम y की फॉर्म में ले रहे हैं, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? मैम इसके लिए 0 से 0 -1 to 1 में लाई -1 से कर रहे हैं, +1 -1 to 1। ठीक है। +1 तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से बन गए? -1 to 0 और 1 to 1 to 0। 0 तो 1 to यहाँ 0 पर आप वैल्यूज निकालोगे t की। ठीक है। तो बताओ ये क्या आ रही होगी? देखो -1 0 डालोगे तो क्या आएगा? मैम उस पे 0 आ जाएगा -1 0 पे हम्म। और वो 1,0 पे भी 0 आ जाएगा 2 नहीं आएगा कहीं पर? नहीं नहीं मैम सॉरी मैम वो ना -1 0 पे 2 आएगा हाँ, तो 2 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। तो हमारे पास Yes. बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? ये वाला, ये वाला, ये पॉइंट, और लास्ट में हमारे पास ये पॉइंट। ठीक है। इन सब पर वैल्यू देखो कहाँ पर हाईएस्ट है, वो आपका एब्सोल्यूट मैम मैक्सिमम। यस। मैम जो आपने लास्ट में वैल्यू लिखी है 11/4, वो 9/4 आ रही है, नॉट 11/4। 9/4 है, तो ये चेक कर लेना, ठीक है, कि 9/4 है कि 11/4 है। एक बार रीचेक कर लेना, इसमें कैलकुलेशन और मिस्टेक अगर हो सकती 11/4 है फिर आंसर यही होगा ना 11/4 है। आंसर क्या है इसका? आंसर तो वैसे मेंशन है नहीं, बट आप वैल्यू चेक कर लेना, ठीक है। एक्चुअली अब नेक्स्ट क्लास का टाइम है, तो ओके आप ये ट्राई कर लेना, अब ट्यूट हो जाएगी आपकी। ठीक है। Okay, ma'am. So thank you everyone. I'm ending this class now. थैंक Thank यू you, ma'am.